علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ عظیم قوال امجد صابری ایک ایسا نام ہے جنہوں نے قوالی کی نئی جہتوں کو متعارف کروایا۔ وہ برِ صغیر کے بڑے قوالوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا فن پوری دنیا تک پہنچا۔ کئی ایک لازوال قوالیوں کو عالمگیر شہرت ملی۔ جب وہ اونچے سروں میں گاتے تو محفل میں سما باندھ دیتے اور ہر کوئی اس شہر میں جھوم اٹھتا۔ امجد صابری ایسے عظیم شخص تھے جن کی قوالیوں سے متاثر ہو کر غیر مسلمان بھی مسلمان ہو گئے۔ گویا انہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی سامنا کیا۔ ملک پاکستان کا روشن چہرہ بن جانے والے اس عظیم شخص کو دن دہاڑے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ ظالموں نے ان کی دھڑکن تو بند کر دی، مگر ان کے لیے کئی دل آج بھی دھڑکتے ہیں اور ان کی آواز آج بھی گونجتی ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امجد فرید صابری کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد غلام فرید اور چچا مقبول احمد قوال گروپ صابری برادرز کی حیثیت سے پوری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کی شہرہ آفاق قوالیوں میں بھر دو جھولی میری یا محمد اور تاجدار حرم شامل ہیں۔ بھر دو جھولی میری اس قدر مقبول قوالی تھی کہ اسے سلمان خان کی ہٹ فلم بجرنگی بھائی جان میں گلوکار عدنان سمیع کی آواز میں ریکارڈ کروایا گیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ جبکہ تاجدار حرم معروف گلوکار عاطف اسلم نے کوک اسٹوڈیو کے لیے پڑھی، جس نے اس قوالی کو نوجوانوں میں دوبارہ سے زندہ کیا۔ امجد صابری کی پیدائش رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوئی اور ان دنوں ان کے والد غلام فرید صابری عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ جب انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ملی تو وہ اس وقت مدینہ میں قیام کیے ہوئے تھے، جہاں سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام امجد فرید رکھنے کا فیصلہ کیا۔ امجد کے 3 بھائی ہیں جن کے نام عظمت فرید، طلحہ فرید اور ثروت فرید صابری ہیں۔ خدا کو سنائیں ہم، میں نظر کروں جان فکر کیسا لگے گا۔ امجد 9 سال کے تھے کہ ان کے والد نے انہیں قوال پارٹی کا حصہ بنانے کے لیے سکھانا شروع کیا اور اس عمر میں ہی انہیں والد کے ہمراہ سٹیج پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ امجد کا تعلق چونکہ اتنے بڑے گھرانے سے تھا، لہٰذا اس نام کی لاج رکھنے کے لیے انہیں سخت تربیت سے گزرنا پڑا۔ امجد کے والد انہیں راگ بھیرو سکھاتے تھے، جس کے لیے انہیں صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا۔ وہ وضو کر کے تہجد پڑھتے اور پھر راگ سیکھنے جت جاتے۔ ان کی والدہ اکثر ان کے والد سے کہتی کہ انہیں سونے دیا کریں، مگر ان کے والد اس معاملے میں نہایت سخت تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ آدھی رات کو سوئے ہو تب بھی آپ کو صبح تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ کیریئر کے آغاز میں امجد قوال پارٹی کے ہمراہ تالی بجاتے اور ہم نوائی میں گاتے۔ 1982 کی فلم سہارے میں وہ اپنے والد اور قوال پارٹی کے ہمراہ تاجدار حرم پڑھتے دکھائی دیے۔ اس فلم میں امجد صابری نے سولو پرفارمنس دیتے ہوئے علامہ اقبال کی مقبول نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے بھی پڑھی تھی۔ والد غلام فرید صابری کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر کرنے کے لیے امجد صابری معاون صداکار کے طور پر سامنے آئے اور قوال پارٹی کی کمان سنبھالی۔ 1996 میں امجد صابری نے اپنے دوستوں اور بھائیوں پر مشتمل نئی قوال پارٹی تشکیل دی اور قوالی کو نوجوانوں میں مقبول کرنے کی کوشش میں جت گئے۔ اپنے بزرگوں کی نسبت امجد صابری کا طریقہ اور طرز قدر مختلف تھا۔ ان کی گائکی میں قوال کے اصل رموز کے ساتھ ساتھ جدید زمانے کی جھلک بھی محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوالیاں ہر طبقے میں یکساں مقبول ہوئی۔ 1997 میں امجد صابری نے بالاخلو لاب کمالی ہی کے نام سے پہلا البم ریلیز کیا، جس میں انہوں نے اپنے والد اور چچا کی معروف قوالی سر لامکان سے طلب ہوئی کو مین آئٹم کے طور پر پیش کیا۔ امجد نے اپنے والد اور چچا کی جانب سے پڑھی جانے والی شاعری کو گانے کے ساتھ ساتھ خود بھی کئی کمپوزیشنز ترتیب دیں۔ ان کی جانب سے گائی جانے والی قوالیوں کو شمار کرنا ممکن نہیں، تاہم ان میں سے بے حد مقبول ہونے والوں میں زہرہ سے شادی اور نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے مقبول ترین کلام میں نظر کروں جان مگر، اللہ اللہ، دھوم مچا دو، کعبے کی رونق، علی میرا دل شامل ہیں۔
अमजद साबरी की मकबूलियत की किरणें पाकिस्तान की सरहद अबूर करके हमसाया मुल्क की इंडस्ट्री पर भी पड़ी, जिसकी हिद्दत से मुतासिर होकर उस जानिब से अमजद को बॉलीवुड के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए मदऊ किया गया। चूँकि अमजद साबरी के वालिद और चचा भी सरहद पार बेपनाह मकबूलियत हासिल किए हुए थे, लिहाजा उन्हें भी इसी चाहत और मोहब्बत से नवाजा गया। अमजद साबरी ने न सिर्फ भारतीय फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए, बल्कि वहाँ पर कई एक कंसर्ट्स में भी अपने लाजवाल फन का जादू जगाया और बदले में कई अवार्ड्स और एजाजात भी समेटे। 2008 में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म हल्ला बोल, जिसकी कास्ट में अजय देवगन और विद्या बालन शामिल थी, उसके लिए अमजद साबरी की जानिब से मोरे हाजी पिया कवाली रिकॉर्ड करवाई गई, जो भारत में बेहद मकबूल हुई। तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा। अमजद साबरी अपने फन से मोहब्बत फैलाने का दर्स देते थे। उनकी कवालियों में इंसान मोहब्बत का जिक्र नुमाया रहता था। इसके अलावा वो अपनी गुफ्तगू में भी मोहब्बत का प्रचार करते थे और यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम संजय दत्त, अनिल कपूर और सलमान खान के साथ उनका दोस्ती का ताल्लुक था और वो उनकी बेहद इज्जत किया करते थे। अमजद साबरी ने फनी कवाली से नाम, शोहरत और पैसा तो खूब कमाया और इसके साथ साथ अपनी आखिरत का भी सामा किया। इस हवाले से ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि अमजद साबरी जब कनाडा परफॉर्म करने गए तो वहाँ कई हजार लोगों का मजमा था। परफॉर्मेंस के बाद बैक स्टेज पर चंद लोग उनसे मिलने आए और कहने लगे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा वो तो हमें समझ नहीं आया, मगर आपकी आवाज सुन लेने के बाद हमारा दिल उस तरफ मायल हो गया है कि हम इस हस्ती के बारे में जाने जिनका आपने जिक्र किया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें मुसलमान कर दें। और इस तरह अल्लाह ने अमजद साबरी से उनके फन के जरिए कितना बड़ा फरीजा सरअंजाम करवा लिया। अमजद साबरी ने अपने फन का मुजाहरा पूरी दुनिया में किया और दुनिया को कवाली के इस फन से आगाह किया, जो कुछ सालों से न सिर्फ जवाल पजीर बल्कि एक हद तक मर चुका था। ये अमजद साबरी का खासा था कि उन्होंने इस फन को कमाल महारत और मेहनत से न सिर्फ दोबारा जिंदा किया बल्कि इसे अपने पैरों पर भी खड़ा कर दिया। अमजद साबरी किस कदर वर्सटाइल थे, इस बारे में कोई भी हद मुकर्रर नहीं की जा सकती। हम इस हवाले से एक छोटा सा नमूना कोक स्टूडियो के गीत आज रंग है में देखा जा सकता है, जिसमें एक और बड़े घराने के चश्मो चराग राहत फतेह अली खान के हमरा समा बांधते दिखाई दिए। इस गीत में बिलाशुबा हर लिहाज से अमजद साबरी राहत फतेह अली खान पर बरतरी बनाए दिखाई दिए। अमजद साबरी को अपने फन की बदौलत अवामी मोहब्बत और प्यार भी मिला और साथ साथ उन्हें रियासत की जानिब से भी खूब सराहा गया। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ साथ 2018 में सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन की तरफ से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। अमजद साबरी रमजान उल मुबारक में उन शख्सियात में होते थे जिन्हें हर चैनल पर रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया जाता था। उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स की रमजान ट्रांसमिशंस के लिए अपनी खिदमत पेश की और एक वाज़े फिगर के तौर पर पूरा रमजान तवज्जो का मरकज बने रहते। जिंदगी के आखिरी अय्याम में अमजद साबरी को समा चैनल के साथ मुंसलिक होने का मौका मिला, जिसमें वो सहर और अफ्तार के मौका पर दिखाई देते। वफात से कबल उन्होंने अपना आखिरी कलाम कब्र अंधेरी में पढ़ा, जिसने सुनने वालों के साथ साथ खुद उन्हें भी अश्कबार कर दिया था। मगर किसी को क्या मालूम था कि सुबह का चढ़ता सूरज किस कदर भयानक वाक़या संग लाने वाला है। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। 22 जून 2016 को अमजद साबरी अपने घर से न्यूज चैनल की रिकॉर्डिंग के लिए निकले, मगर उन्हें क्या मालूम था कि रास्ते में उनके खून के प्यासे घात लगाए बैठे होंगे। जब अमजद लियाकताबाद टाउन के पास पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी, जिससे उन्हें 6 गोलियां लगी, जिनमें से 2 उनके सर पर और एक कान पर लगी, जो जानलेवा साबित हुई। उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो जानबर न हो सके और रमजान उल मुबारक के महीने में अल्लाह के पास चले गए। उनकी अलमनाक मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते पूरा पाकिस्तान सोगवार हो गया। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से उनके इंतकाल पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया गया। इस वाक़ये के बाद हुकूमती नुमाइंदों ने भी अमजद के घर का रुख किया और उन्हें तसल्लियां दी कि वो उनके कातिलों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। अमन और मोहब्बत के दाई अमजद साबरी को उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी के कदमों में सुपुर्द खाक किया गया। अमजद साबरी ने सोगवारान में बीवी, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी।
उनकी वफात के कई साल बाद ये बताया गया कि उनके कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी जानिब से इकरार किया गया कि उन्होंने अमजद साबरी को भत्ता न देने की वजह से कत्ल किया। जबकि दूसरी जानिब यह भी कहा जाता है कि उन्हें MQM की जानिब से एक फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया था, जिस पर उन्होंने इनकार किया और इसी वजह से उन्हें कत्ल की धमकियां मौसूल होने लगी। उनके कातिलों पर फौजी अदालत में मुकदमा चला, जहां उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। उनकी वफात पर कई फनकारों की जानिब से उन्हें खराजे तहसीन पेश किया गया, जिसमें काबिल जिक्र मारूफ बरतानवी बैंड कोल्ड प्ले था, जिन्होंने अपने गीत चर्च में उनकी आवाज को शामिल करके उनके अजीम फनकार होने का सबूत दिया। अमजद साबरी की अचानक दर्दनाक मौत ने जहां पूरे पाकिस्तान को सोग में डुबो दिया, वहीं उनके अहले खाना को भी सख्त मुश्किलात में मुब्तला किया। अमजद चूंकि घर के वाहिद कफील थे, लिहाजा उनके चले जाने के बाद उनके अहले खाना को माली मसाइल से दो चार होना पड़ा। हुकूमत वक्त ने उनके साथ मदद के कई एक वादे किए, मगर बदकिस्मती से एक भी वादा वफा न हो सका। इसके अलावा उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिलने लगी, जिसकी वजह से उनके घर वाले कराची से लाहौर मुंतकिल हो गए। जब किसी भी तरफ से कोई रास्ता नजर न आया तो अमजद साबरी के बड़े बेटे मुजद्दिद ने खुद हालात संभालने का फैसला किया और अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाने के सिलसिले का आगाज करते हुए कवालियां गाना शुरू की। उनकी कई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी विरासत के दाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अमजद साबरी आला पाए के फनकार होने के साथ साथ एक शरीफ नफ्स इंसान थे, जो सर से पांव तक सादगी का लबादा ओढ़े दिखाई देते थे। उनकी शख्सियत में किसी किस्म का तसन्ना या बनावट दिखाई नहीं देता था। वो छोटे से इलाके में रहते थे और छोटे बड़े अमीर गरीब सबको एक जैसी इज्जत से नवाजते थे। वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने का काम खुशुसलूबी से अंजाम दे रहे थे। अमजद साबरी भले ही इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी गायकी और उनका अमन और मोहब्बत का पैगाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।